जो लोग पहले, जैसे आपने देखा ना, कभी कभी आप जब यू स्पेशल में चढ़ते हैं तो जो पहले सीट में जो बैठ जाते हैं वो कभी सीट को छोड़ते नहीं। एक किस्म से यूएन भी ऐसा ही है, हाँ? कि जो बैठ गए, हाँ, जो बैठ गए उनको लगता है कि हमारा हमारा हक है। दुनिया का सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन के हिसाब से, पांचवा इकोनॉमी, उसको आप बाहर कितने दिन के लिए रख सकते? सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप्स should undergo a change. So history is on our side. नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 की थीम में वसुधैव कुटुंबकम के उल्लेख पर चीन की आपत्ति पर ड्रैगन को खरी खरी सुना दी है। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं होने को लेकर उसके 5 स्थायी सदस्यों पर भी करारा कटाक्ष किया है। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा है कि आज दुनिया उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में बटी हुई है तथा विभाजित दुनिया को एक साथ लाना भारत की जिम्मेदारी है। G20 के जो थीम जो है वो वन अर्थ है, वन फैमिली है और वन फ्यूचर है। अब वन अर्थ का मतलब क्या है? वन अर्थ का मतलब है कि दिस इज अ कॉमन प्लैनेट वी इनहैबिट। दैट मीन्स वी विल पुश ग्रीन डेवलपमेंट, we will push climate action, we will push climate finance, we will look at issues like plastics, biofuels, disaster response, because we share one earth. It is our common living space. Now, when I come to one family must address the problems of the family. So what are the problems of the family today? Problems of the family, as I said, gender equality. Gender inequality has grown. Today, we can see that sustainable development, health, nutrition, all these have regressed. We are seeing inclusive growth has shrunk. So when we talk today about millets is not because it is just something different to eat. Millets can give the world food security. Even in our own country, millets use less water. Millet can grow in dry climate. Millet can be grown by small farmers. Its carbon emission is less. And it is more nutritious. But we produce, for 100 million tons of wheat, we only produce 17 million tons of millet. So if we all actually start putting millet in our daily routine, which by the way our grandparents and great-grandparents used to eat millets. So it is not something which is foreign or which is different. It is part of our culture and tradition. So as I said earlier, if we can get into global value chains, if we do not, a world economy where business is concentrated in one country, where production is concentrated in one country or one region, that is not fair to the rest of the world. It is not democratic. So we are pushing today for, as you say, within one family, for value chains, for supply chains, for fairer production, for better food production, for skills mapping. That you have people who can work in some countries, but they cannot get access to the economies where the demand is there. So that is also something which is important. And then when we talk about one future, what do we want in our future? We want more digital, we want more technology, we want better health solutions, we want a fairer world. So, when we speak one family, one earth, one family, one future, this will mean you will see in September, when the summit happens, it will mean very specific agreements among the G20. Among the G20, इसको हम कैसे आगे ले जाएं? How do we address the present? How do we look at the future? How do we find solutions? Where do we find common ground? And definitely health, especially after COVID, will be something very, very big in this. राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के लिए किस प्रकार परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने का भारत का लक्ष्य अभी अधूरा है। महोदय, भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। यह उपलब्धि भारत को किस प्रकार से अस्थायी सदस्यता के लिए एक प्रमुख कारण बन सकता है? देखिए, ये अभी जो यूएन जो है, इसकी आर्किटेक्चर जो है 1940s में बनी थी।
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय। और उसके जब बनी थी, आप याद रखिएगा कि उस समय कुल मिला के यूएन, पूरे यूएन की सदस्यता जो थी वो करीब 50 देश थे। अब वो 4 गुना बढ़े हैं। अभी दुनिया में करीब दुनिया में करीब 200 देश। तो जो आप सोचिए कि कोई भी व्यवस्था जब 50 मेंबर्स होते हैं और अब वो व्यवस्था जो है 50 से 200 हो चुकी है, तो ये कैसे संभव है कि वही लोग जो 50 को चलाते थे वो 200 को चलाएं? तो ये परिवर्तन तो आएगा, जरूर आएगा। पर इसमें क्या होता है कि जो लोग पहले, जैसे आपने देखा ना, कभी कभी आप जब यू स्पेशल में चढ़ते हैं तो जो पहले सीट में जो बैठ जाते हैं वो कभी सीट को छोड़ते नहीं। हाँ, वहीं आप खड़े हों, बस कहीं भी जा रही हो तो वो बैठे रहेंगे वहाँ, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हाँ, तो क्या होता है कि एक किस्म से यूएन भी ऐसा ही है। हाँ, कि जो बैठ गए, हाँ, जो बैठ गए उनको लगता है कि हमारा हक है। अब ये बाकी दुनिया नहीं मानेगी, क्योंकि आज अगर आप देखें सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप से एक भी अफ्रीका का देश नहीं, एक भी लैटिन अमेरिका का देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन के हिसाब से, 5वां इकोनॉमी, उसको आप बाहर कितने दिन के लिए रख सकते? और जब आप रखेंगे इनको बाहर, क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी, नुकसान किसको पहुंचता है? नुकसान जो है यूएन को होता है, क्योंकि यूएन की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो यूएन के कुछ भी निर्णय हो तो बाकी कहते हैं कि भाई वही 5 उन्होंने लिया। तो आज मुझे लगता है ये, अगर आप एक डेमोक्रेटाइजेशन की परिप्रेक्ष्य से देखें, क्रेडिबिलिटी की सोचें, संख्या की कहीं आप ज्ञान लें, तो मुझे लगता है ये जरूर ये परिवर्तन आएगा। और हाल ही में जब हम लोग साउथ अफ्रीका गए थे ब्रिक्स में, तो इस बार ब्रिक्स की कलेक्टिव पोजीशन जो है ये भी आगे बढ़ी है कि पहली बार ब्रिक्स ने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप में, मेंबरशिप्स इन प्लूरल, हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप्स शुड अंडरगो अ चेंज। So history is on our side. I can tell you, UN will change. The people, the countries, the people, the forces who are blocking it will keep trying, but eventually it will happen. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।